محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ محمد مسلمانوں کے رسول ہیں، کیا کہا؟ اللہ کے اللہ کے رسول ہیں، تو دنیا کے سارے انسانوں کے رسول ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سمپور سنسار کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنائے۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، صرف قرآن نہیں کہتا کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے میں ہندوستان کی مذہبی کتابوں کے حوالے سے، ارے ہے تو بہت کچھ، پھر کسی موقع پہ گفتگو ہوگی۔ اب ذرا دیکھیں آپ، ہندوستان میں بہت سے دھرم گرو ہوئے ہیں، اسی میں سے ایک دھرم گرو ہوئے مہاتما بدھ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 450 سال پہلے، کتنا؟ 450 سال ہے 450 بیفور کرسچن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 450 سال پہلے کس کا زمانہ ہوا ہے؟ گوتم بدھ کا۔ اب ذرا دیکھیں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ پیغمبر جو آئیں گے سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئیں گے۔ ذرا مہاتما بدھ کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ جب مہاتما بدھ کا انتم سمے آیا، پر لوگ سدھارنے کا ٹائم آیا، نزا کا ٹائم آیا، تو ان کے سیوک نندا نے پوچھا کہ سوامی آپ تو پرلوک سدھارنے کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد انسانوں کا مارگدرشن کون کرے گا؟ ان کو سچائی کی تعلیم کون دے گا؟ ان کی رہبری کون کرے گا؟ ان کا مارگدرشک کون ہوگا؟ تو مہاتما بدھ نے کہا کہ نندا میں انتم دھرم گرو نہیں ہوں، میں آخری دھرم گرو نہیں ہوں، میں آخری مارگدرشک نہیں ہوں، میرے بعد ایک مہان دھرم گرو آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ایک مہان دھرم گرو آئے گا، ایک سرو شریشٹھ مارگدرشک آئے گا، ایک پرکانڈ مارگدرشک آئے گا۔ کہا نندا نے کہ سوامی اس کو ہم پہچانیں گے کیسے، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو مہاتما بدھ حضرت پیغمبر اسلام کی پیدائش سے 450 سال پہلے اپنے غلام، اپنے خادم، اپنے سیوک نندا سے کہتے ہیں کہ سنو، وہ جو مہان پیغمبر آئے گا وہ نور علی نور ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ پرکاش ہی ہوگا، اجول ہی اجول ہوگا، اور وہ انتریامی ہوگا، دلوں کے حال جاننے والا ہوگا۔ کہا کہ اور کیا نشانیاں؟ کہا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ دنیا کے سامنے ایسے مذہب کی تعلیم دے گا کہ جو مذہب اپنی جگہ مکمل ہوگا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر سمسیا کا سمادھان اس میں موجود ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اور اسلام کیسا مذہب ہے کہ جس میں ہر سمسیا کا سمادھان موجود ہے۔ کہا کہ سوامی اور کیا نشانی ہوگی؟ کہا کہ وہ ایسے مذہب کی تعلیم دے گا کہ جو فطرت کے مطابق ہوگا۔ کیا کے مطابق ہوگا؟ نندا نے کہا کہ سوامی اس کا نام کیا ہوگا؟ تو اب ذرا غور فرمائیں۔ مہاتما بدھ کہتے ہیں کہ نندا سنو، اس کا نام ہوگا میتریہ۔ کیا ہوگا؟ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جا کے سنسکرت ہندی شبد کو اٹھا کے دیکھ لینا۔ میتریہ کے معنی ہے کرپا۔ کیا ہے؟ کرپا، دیا، کرپا والا، ہندی کریے کرپالو، دیا والا، دیالو، اس کی عربی کریں گے تو رحمت والا، رحمت للعالمین، یعنی وہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے گا، اس کا لقب رحمت ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، اس کا لقب کیا ہوگا؟ رحمت ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، نوٹ کریں حوالہ، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، الہ آباد کا ایک بہت مشہور اخبار سن 1930 عیسوی، انگریزی کا اخبار لیڈر، کیا نام ہے اخبار کا؟ لیڈر، سن کیا ہے؟ 1930، کالم نمبر 7، پیج نمبر 3 پر مہاتما بدھ کے ماننے والے ایک بہت بڑے بدھ ودوان نے اس بات کو لکھا کہ
गौतम बुद्ध ने जो भविष्यवाणी की थी मैत्रेय के बारे में, वो कोई और नहीं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हिंदुस्तान की मजहबी किताबों के अंदर पैगंबर इस्लाम के गीत गाए गए हैं, चर्चा की गई है। हजरत मैं वेदों से बयान करूंगा तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। हिंदुस्तान की मजहबी किताबों में जहां 4 वेद हैं, वहीं 18 पुराण भी हैं। कितने हैं? 18 पुराण। 18 पुराण। 18 पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण। क्या है? भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के मैं चंद श्लोक पढ़ रहा हूं। 27 श्लोक है, सिर्फ 3 श्लोक मुलाहिजा फरमाए और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबिना तबीब क़ुलूबिना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह या नबील्लाह। हजरत, आप उलमाए किराम से कुरान और हदीस की रोशनी में सरकार का मिलाद सुनते रहते हैं। क्या सुनते रहते हैं? मिलाद किसे कहते हैं? मिलाद का लफ्जी माना है पैदाइश। क्या है? मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश। और इसका इस्तिलाही माना क्या है अहले इल्म की जुबान में? वो जलसा, वो महफिल, वो सभा जिसमें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जो मौजज़े जाहिर हुए, जो खुदाई करिश्मे जाहिर हुए, उनका बयान करना, सरकार की सीरत पर रोशनी डालना, इसका नाम क्या है? महफिल मिलाद। हिंदी में कह सकते हैं कि अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय जो ईश्वरीय चमत्कार प्रकट हुए, उनका वर्णन करना, उनका उल्लेख करना, उनकी चर्चा करना, इसका नाम क्या है? मिलाद। तो जिस महफिल में पैदाइश का जिक्र हो, उसका नाम क्या है? महफिल मिलाद। तो आज तक आपने कुरान और हदीस से सरकार का मिलाद सुना है? मैं हिंदुस्तान के पुराणों से मिलाद सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह। पैदाइश का जिक्र मुलाजा फरमाए। तो हिंदुस्तान की मजहबी किताबों के अंदर पैगंबर इस्लाम का मिलाद कैसे पढ़ा गया है, चर्चा कैसे की गई है, गीत कैसे गाए गए हैं? नूरे मोहम्मदी सबसे पहले कहाँ आया? हिंदुस्तान में, इसलिए उसके जलवे हिंदुस्तान की मजहबी किताबों में कैसे नजर आते हैं? तो भविष्य पुराण, फिर तीसर, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 1, श्लोक 5 मुलाजा फरमाए। क्या कहता है? ए तस्मीर अंतरे मले छाचायरण समन्विता महामद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता। एक दूसरे देश के रूहानी पेशवा, आध्यात्मिक मार्गदर्शक अपने मानने वालों के साथ आएंगे। मरुस्थल, रेगिस्तानी इलाके में आएंगे। और मक्का कैसा इलाका है? रेगिस्तानी इलाके में आएंगे और उनका नाम महामद होगा। सुभान अल्लाह। नाम क्या होगा? महामद होगा। और आप पढ़े लिखे हजरात, आप जानते हैं कि जब एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में जाएगा है तो अंतर हो जाता है। अरे एक इलाके की जुबान दूसरे इलाके में, एक इलाके दूसरे इलाके में फर्क हो जाता है? नहीं होता है? फर्क हो जाता है। तो भाषा के बदलने से लफ्ज बदल जाते हैं, जुबान के बदलने से लफ्जों में तब्दीली, इलाका बदलने से जुबान। तो संस्कृत में मोहम्मद को कहा गया है क्या? महामद। जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं मोहम्मद की जगह मोहम्मद, एंड द राइज ऑफ इस्लाम। तो इंग्लिश में कहते हैं मोहम्मद को मोहम्मद, और संस्कृत में क्या कहा गया है? मोहम्मद। तो ये तो भाषा के बदलने से, जुबान के बदलने से लफ्ज बदल जाते हैं। अरे इलाका बदलने से जुबान बदल जाती है। मौलाना साहब, हम लोग जब तक लखनऊ तक रहते हैं तो ट्रेन में जो आता है चाय पानी बेचने, तो कहता है चाय पानी, और जैसे ही लखनऊ से आगे बढ़े तो वो चाय की जगह कहता है चैहा पीहो, पनिया पीहो, पनवा खाइयो है। और अभी मुझे एक साहब बता रहे थे, मैं कभी खाना खाएंगे तेलुगु में क्या कहेंगे है? तो वो कह रहे हैं अन्नमा तिन्नू। समझ रहे नहीं? तो इलाका बदलने से जुबान, लफ्ज बदल जाते हैं, भाषा बदलने से लफ्ज बदल जाते हैं। तो संस्कृत में क्या कहा गया है? मोहम्मद की जगह महामद कहा गया है। तो क्या कहा कि वो रेगिस्तानी इलाके में आएंगे और उनका नाम क्या होगा? महामद होगा। और आगे देखें निशानी, यहां बताया गया कि नाम मोहम्मद होगा, महामद होगा, और निशानियां क्या होंगी?
भविष्य पुराण कीर्ति सर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक 25। मुलाजा फरमाए, लिंग छेदी शिखाहीन शर्म श्रुधारी शदूषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यते जनामम। लिंग छेदी, जो हिंदी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं, संधि विच्छेद टुकड़े करके समझा रहा हूं। मौलाना फरमाए, लिंग छेदी, वो जो पैगंबर आएंगे खतना शुदा होंगे। कैसे होंगे? खतना शुदा, खतना किया हुआ होगा। और आप जानते हैं कि दुनिया में 13 पैगंबर ऐसे पैदा हुए कि दुनिया में जिनका खतना, तो हमारे पैगंबर कैसे पैदा हुए? लिंगत छेदी, नाम मोहम्मद होगा, रेगिस्तानी इलाके में आएंगे, लिंगत छेदी, और कैसे होंगे? खतना शुदा होंगे, हैं? और हजरात, ये खतना पैगंबर इस्लाम की ऐसी सुन्नत है कि इसका नाम ही पड़ गया मुसलमानी। जो खतना का ना कराए कहते बगैर मुसलमानी का है। क्या है? और हजरात और देखें, पैगंबर इस्लाम की दूरअंदेशी देखें कि जिस चीज को साइंस इतनी तरक्की करने के बाद, इतना डेवलप होने के बाद, जिस चीज को साइंस आज बता रही है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया। यूपी के अमर उजाला अखबार सन 2008 फरवरी में फर्स्ट पेज पे हेडिंग थी कि खतना कराओ और लिंग के कैंसर से सुरक्षित हो जाओ। लिंग के कैंसर से सुरक्षित हो जाओ। तो साइंस आज बता रही है, और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आज भी अगर जवानी में, बुढ़ापे में किसी के लिंग में, पेशाब के मकान में इन्फेक्शन हो जाए तो कसम खुदा की मेडिकल साइंस में खतना कराने के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। और कुरान ने क्या फरमाया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये वो पैगंबर हैं कि तुम्हारा मुसीबत में पड़ना इनसे बर्दाश्त, तुम्हारी परेशानी इनसे गवारा नहीं होती। तो इससे पहले कि जवानी में, बुढ़ापे में खतना कराओ, बचपन में ही बच्चों की खतना कराओ और बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाओ। तो क्या बताया कि लिंगत छेदी, वो जो पैगंबर होंगे वो कैसे होंगे? खतना शुदा होंगे। लिंगत छेदी शिखाहीन, शिखा माने चोटी, हीन माने रहित, चोटी रहित, उनके सर पे चोटी नहीं होगी। और आप जानते हैं कि मुसलमान चोटी, तो लिंगत छेदी शिखाहीन शर्म शुरूधारी, शर्म शुरूधारी कहते हैं दाढ़ी मूछ वाले, उनके दाढ़ी भी होगी और मूछ भी होगी। और आप जानते हैं कि दाढ़ी रखना पैगंबर इस्लाम की सुन्नत, आपने फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें छोटी कराओ। तो नाम मोहम्मद होगा, रेगिस्तानी इलाके में आएंगे, लिंगत छेदी, खतना शुदा होंगे, शिखाहीन, सर पे चोटी नहीं होगी और उनके दाढ़ी भी होगी, और शर्म शुरूधारी साधुषा का। ऐसा कहा गया है उच्चा लाभ, उच्च माने ऊंची, अलाप माने आवाज, ऊंची आवाज में अपना पैगाम दुनिया के सामने पेश करेंगे। और आप जानते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के समाज में 40 साल जिंदगी अपना चलना फिरना मामला सब दिखाने के बाद एक दिन सारे मक्के के लोगों को फारान की चोटी के नीचे जमा किया और पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? कहा कि आप सादिक हैं, कभी आपने झूठ नहीं बोला, आप अमीन हैं, कभी आपने अमानत में खयानत नहीं की। कहा कि मैं जो कहूं मानोगे? कहा कि हाँ। आपने फरमाया उच्च आलाप, ऊंची आवाज में कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजा करने के लायक नहीं और मैं अल्लाह का। तो ऊंची आवाज में पैगंबर इस्लाम ने अपना पैगाम पहुंचाया। और आज भी पैगंबर इस्लाम के हुक्म पर अमल करते हुए मस्जिदों से 5 टाइम उच्च आलाप, ऊंची आवाज में इस्लाम का पैगाम बुलंद होता है। और अजान का पैगाम कैसा बुलंद होता? कसम खुदा की 24 घंटे में 1 सेकंड भी अजान की आवाज कभी रुकती नहीं है। बांग्लादेश से शुरू होगी पहले से, उसके बाद बांग्लादेश के बाद जो इलाका पड़ता वहां शुरू, फिर कलकत्ता, इस तरीके से अजान 24 घंटे हर वक्त अजान होती रहती है, अजान की सदाएं गूंजती रहती हैं। तो बहरहाल उच्चालाप, वो ऊंची आवाज में अपना पैगाम दुनिया के सामने पेश करेंगे। सर्वभक्षी, वो सब खाने वाले, यानी शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे, वो सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सब्जी में पैगंबर इस्लाम को लौकी पसंद, चुकंदर पसंद, मेथी पसंद, ककड़ी पसंद, अनार पसंद है।
तरबूज, ये सब आपने खाया। और गोश्त में पैगंबर इस्लाम को बकरे के बाजू का गोश्त पसंद। क्या पसंद? बकरे के बाजू का। लेकिन एक बात बता दें, इस्लाम में गोश्त खाना जायज है। क्या है? वाजिब या फर्ज। ऐसा नहीं है कि अगर गोश्त ना खाओ तो गुनाहगार हो जाओ, जहन्नम में जाओ, ऐसा है कोई? पर ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि गोश्त खाना पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो लोग हमसे कहते हैं कि मुसलमान बड़े निर्दयी होते हैं, बड़े जालिम होते हैं, जीव हत्या करते हैं, उनके यहाँ गोश्त खाना वाजिब है, उनके यहाँ गोश्त खाना फर्ज है। मैं गोश्त का टॉपिक छोड़ता हूँ, फिर किसी मौके पर गुफ्तगू होगी, मैं आगे बढ़ता हूँ। आखिरी श्लोक मुलाजा फरमाए, ये टॉपिक भी बड़ा चूंकि लंबा हो जाएगा, मुलाजा फरमाए आखिरी श्लोक। भविष्य पुराण पृथ्वी सर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक 26। क्या है? बिना कोलम चे पश्वस्तेषा भक्षया मतामम मुस्ले ने संस्कारा कुशैरि भविष्यति। बिना मंत्र पढ़ा हुआ उनके गोश्त हलाल नहीं होगा। बिना मंत्र पढ़ा हुआ गोश्त उनके लिए हलाल नहीं होगा। उनके मानने वालों को मुसलमान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और मुसलमान भी जब तक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना पढ़ने गोश्त हलाल नहीं होता है। समझ रहे नहीं आप? और हजरात, अरे मैं तो कहता हूं कि जिस तरह ये पैगंबर दुनिया के सारे इंसानों के पैगंबर है, इनका लाया हुआ मजहब दुनिया के सारे इंसानों का हकीकत में यही मजहब है। कुरान फरमा रहा है, इसी तरीके से इनका जो कलमा है, क्या है? वो भी सिर्फ मुसलमानों का कलमा नहीं, अरे दुनिया के सारे लोगों का हकीकत में यही कलमा है, यही मंत्र है, यही धर्म मंत्र है। आइए आपको बताएं, सिर्फ लफ्जों का फर्क है। आप जरा देखें, आप हिंदू धर्म की बहुत सी किताबें हैं, उसी में है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। ये उपनिषद हिंदू धर्म के रूहानी ज्ञान, रूहानी इल्म, जो मुर्शिद की कदमों में बैठकर, मुर्शिद के गुरु के चरणों में बैठकर जो मतलब आध्यात्म बात की जो शिक्षा मिलती थी, उसे क्या कहते हैं? बहुत अहम किताबें हैं। तो उसी में एक किताब है अल्लोपनिषद। अब जरा देखें, इस्लाम का कलमा देखें, इस्लाम की अजान देखें और अल्लोपनिषद का पैगाम देखें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इन श्लोकों को बयान किया है। नगेंद्र नाथ बसु ने अपने विश्वकोश के दूसरे खंड में बयान किया है। 11 श्लोक है, सिर्फ 3 श्लोक मुलाजा फरमाए और एक तरफ इस्लाम का कलमा रखें, एक तरफ ये रखें, तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह ये इस्लाम का कलमा है, दुनिया के सारे इंसानों का हकीकत में सारे हिंदुस्तानियों का यही कलमा है। अब क्या कहा? मुलाजा फरमाए, कहा गया अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परम पूर्णम ब्रह्मांडम अल्लाम अल्लो रसूल महामद रकब रस्से अल्लो अल्लाम। अल्लो ज्येष्ठम, अल्लाह बड़ा है। अल्लो श्रेष्ठम, अल्लाह आला है। अल्लो परम पूर्णम, अल्लाह कामिल है। अल्लो ब्रह्मांडम, अल्लाह पाक है, मुकद्दस है। अल्लो अल्लाम, अल्लाह सारे आलम का पालनहार है। अल्लो रसूल महामद, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के वाह वाह, सुभान। इल्ला अकबर इल्ला अकबर इल्ला अकबर इल्लाम इल्लल्लेती इल्लल्लाह हो मल्ला इल्लल्लाह। अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही महान है, अल्लाह ही महान है। ऐ पुजारी, तू कह दे कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा करने के लायक नहीं। असुर सहारणी वो अल्लाह जो दुष्टों का नाश करने वाला है। अल्लो रसूल मोहम्मद, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इल्लाम इल्लल्लेती इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजा करने के लायक नहीं, वो एक है, उसके सिवा कोई पूजा करने के लायक। तो इल्लल्लेती इल्लल्लाह, अल्लो रसूल मोहम्मद, लफ्जों का फर्क है। बाकी जो इस्लाम का कलमा है वही पैगाम यहाँ पर दिया गया है।